Hello and welcome to another exciting episode of Buzz in Content Spotlight. This time we are thrilled to speak with Sakshi Jain, a CA and also a financial educator. So every time whenever we interview somebody on Buzz in Content, there's always a reason for it. Sakshi, who is just 23 years old, has built a community of over 1.6 million followers on Instagram. Well, a lot of people have got such many followers, but the point is she did it in just 8 months. So, welcome, Sakshi. Welcome to Buzz and Content Spotlight. Hi, thank you so much for inviting me. It's lovely to be a part of this. So, how did you begin your journey as a content creator or khas karke in the finance genre? See, I have shared it a lot of time, I think, abhi tak वैसे मतलब on my page. But how I got into content creation was after becoming a chartered accountant. Yeah, even before becoming a chartered accountant, I wanted to do something that जो मेरे को अपना personal identity build करने में help करेगा या something that can impact a lot of people and help me create a good identity for myself. I had no idea how I would be able to do that. So CA clear करने के बाद since I had no idea, I went for a corporate job. I joined a good company. I started working over there. But job करते करते ये समझ में आ गया कि it's not working for me. मतलब it's just because I did not wanted to go for a job starting से and I wanted to do something of my own. इसीलिए I did not had interest उस तरफ बहुत ज्यादा. So I resigned from that company and I came back home. I just worked for there for 3 months. And matlab like I cleared my exams in November 2022. The results came in January 2023. I joined the company in March. I worked there from March to June and then resigned and came back home because that was not working for me. Now after I came back home, during that time I became active on LinkedIn ki thoda started posting about my CA journey and CA results, everything around CA. I was getting a good response over there, so that gave me a bit push of doing something into content creation. But till then, I was not very sure कि exactly क्या करना है. During that time, when I resigned and came back home, I was exploring बहुत सारे options कि what else can I try? Should I start up my own business? Should I open up my practice or do something वैसे करके? So at that time, an edtech company approached me and they asked me to make a video ad for their platform. So I agreed. मतलब I thought कि let's try this. If this works, if this works, हम content creation भी try कर सकते हैं. So I agreed and made a video for that. So although it took me 60 to 70 takes to come up with just that one single video, लेकिन फिर भी after exploring कि हाँ content creation can help me to build up a personal identity, can help me help a lot of people, reach a lot of people, uh, build up my good personal brand. So इसीलिए I thought of giving content creation a try and that is how I got into content creation. अब इस इंटरव्यू का सबसे important question probably our audience would love to know. So audience मतलब this is an important answer. I mean whatever you will say it's going to be important for content creators also and also for brands looking to increase their followers and engagement. How were you able to get 1.6 million followers in just 8 months? So I started creating content in October 2023. In October 2023, so at that time, before starting, I actually gave myself 2 months time to actually just create content. I just did not start. Matlab, I resigned in June, and after that, July, August, September, and then I started posting videos on Instagram in October. So during those 3 months, na, I had created a lot of videos. मतलब I before posting also I मेरे पास 15 to 30 set of videos ready था around मतलब अगर fully ready नहीं तो 30 videos ready था जो I had to post from October. तो one thing that helped me to reach here एक तो है इस consistency. For 3 months I did not even miss a single day. मतलब I posted every single day. So one is consistency. The other is because क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग से एक कंटेंट बैंक था तो मैंने स्टार्टेड पोस्टिंग तो मेरे को पता चलने लग गया व्हाट माय ऑडियंस इज लाइकिंग. अगर इफ आई वुड हैव पोस्टेड 2 वीडियोस अ वीक या 1 वीडियो अ वीक तो मेरे को ये समझने में टाइम लग जाता कि मेरे ऑडियंस को क्या समझ में आ रहा है. सिंस आई केप्ट ऑन पोस्टिंग एवरी डे तो मेरे को वो थोड़ा जल्दी पता चल गया कि व्हाट माय ऑडियंस इज लाइकिंग एंड देन आई क्रिएटेड मोर ऑफ वैसा और कंटेंट. आई स्टार्टेड
content I started creating, and people started loving it. I got good response. तो वही चीज और की, to make videos that my audience is liking. Also, I always try to make a video in a very practical way, which मतलब अगर लोगों को कोई टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन माय वीडियो सो दैट इट वाज मोर शेयरेबल, मोर रिलेटेबल. तो इसीलिए आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मिक्स टुगेदर दैट हेल्प्ड मी टू रीच हियर अभी. You know, in one or two videos, I did not see all of your videos, but while I was researching for this interview, I saw that आप खुद ही multiple characters play करते हैं. So, do you intend to bring in your family in between and you ask them to play roles जैसे सलोनी वगैरह करते हैं in your content? See, I have actually created 3-4 videos where I have brought in my father in the video and my mom in the video, and my audience actually, the people actually like that. So अभी बहुत often तो नहीं लाती मैं उनको, but now पहले ऐसा होता था ना, when I started they were very against, not very against, but थोड़ा उनके साइड से एक था कि यार why do you want to start content creation after becoming a chartered accountant. तो उनके साइड से बहुत traction एक वैसा था थोड़ा, but तो उस टाइम they were not very happy ना, तो उस टाइम I couldn't even ask them to come in my videos. But अभी ऐसा होता है, they want to come in my videos. मतलब कुछ ऐसा होता है, मम्मी like अब next video बनाओगे तो I'll also be there. Because a lot of people want to actually, मतलब they want to pursue it like a profession and they want to do it full time. But again, family support नहीं होता, क्योंकि लोग सोचते हैं there's a lot of risk in it. आज Actually, चलेगा आपका काम, नहीं चलेगा. So आपने मनाया कैसे अपनी फैमिली को? I told you ना, when I resigned, I actually did not inform my parents कि I have resigned and came back home. So I went to Bangalore for that job. So I came back ना, so I told them that I'll do work from home for a few days, and then they had an idea कि हाँ ये continue नहीं कर रही है, but उनको नहीं पता था कि I've resigned and come back वापस. तो उस टाइम पे, but eventually मेरे को समझ में आ गया कि कितना टाइम तक I would be able to hide this. So I told them that I have resigned. तो उसके बाद I told them कि हाँ अब I am thinking of getting into content creation. तो उनके लिए content creation was something very new, क्योंकि they have not seen anyone pursuing this as a career ना. तो उनके साइड से था कि जॉब के साथ कर लो, हो जाएगा, अभी इतना स्टेबल जॉब है, अभी आगे नहीं पता कैसे होगा. तो आई जस्ट टोल्ड देम कि आई डोंट नो, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता कि हाउ विल दिस गो, बट आई डोंट वांट टू लाइक, आई जस्ट वांट टू गिव माई सेल्फ थोड़ा टाइम कि लेट मी गिव 6 months दे दो आप मेरे को, उसके बाद वी विल सी कि ठीक है कैसे वर्कआउट करता है. क्योंकि एनीवेज अगर 6 months कुछ भी वर्क नहीं करता है, तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं होगा कि आई विल नॉट गेट अ जॉब. मेरे पास थोड़ा सा सेफ्टी नेट उसका था. ठीक है, मे बी वो अभी जो पे हो रहा है, पे स्केल है, वो उस समय थोड़ा डाउन हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि आई विल बी सिटिंग आइडल, ऐसा रहेगा. तो गिव मी 6 months, डोंट पोक मी बहुत ज्यादा ये 6 months में कि कुछ और कर लो, कुछ और कर लो. ये तो व्हाट आई डिड, वैसे ही वो 6 months का टाइम मांगा, एंड देन गिव माई बेस्ट ड्यूरिंग दिस 6 months, एंड वो 6 months रियली वर्कड आउट वेल, एंड आई रीच्ड $1 million इन दैट स्पैन ऑफ टाइम. तो फिर they were also happy कि हाँ she made a तो good. इसका मतलब ये कि whoever wants to pursue this full time, they need to have a safety net or some plan in place, some plan B, कि अगर ये नहीं चला तो फिर they have something else to pursue. हाँ मतलब I think that is actually required. मतलब I resigned my job, लेकिन I wouldn't suggest anyone कि आप अपना job resign कर दो if you don't have a मतलब बैकअप ऑप्शन. जस्ट बिकॉज मेरे पास ये सीए का एक जो टैग था, दैट एक्चुअली हेल्प गेव मी द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन. नहीं तो आई डोंट थिंक आई वुड एवर हैव स्टार्टेड दिस. तो अगर आपके पास एक प्लान भी, आप साथ में ही ट्राई कर लो. अभी मेरे को समझ में आया कि हाँ साथ में भी रह के हो सकता है. मतलब ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा. पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, कंटेंट क्रिएशन एकदम ही अलग से आप फोकस करोगे तभी होगा, लेकिन नहीं, आई थिंक थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अगर करना आता है तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हो. एंड फिर व्हेन दिस स्टार्ट्स वर्किंग, आप फिर आप देख लो कि आपको कंटिन्यू करना है अपना जॉब, या फिर आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, या फिर नहीं. सो इट्स नॉट दैट आपने एक दिन में ही 1.6 मिलियन अचीव कर लिया. कंसिस्टेंटली आपने कंटेंट बनाया है और आपने अपनी ऑडियंस की बात सुनी है, बेसिस देयर रिस्पॉन्स आपने उसके अराउंड कंटेंट बनाया है. बट व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ कंटेंट दैट वर्कड वंडर्स फॉर यू? While there were 2-3 pieces of content that actually worked. One was actually something about related to CA, the ICI tie up. So it did not work when I posted it.
तो आफ्टर 15 to 20 days इट स्टार्टेड गेटिंग ट्रैक्शन। तो वहां से क्या हुआ, वो एक वीडियो थोड़ा वर्क किया, एंड देन जो न्यू पीसेस ऑफ कंटेंट, जो इम्प्रूव पीस ऑफ कंटेंट, उसी को ध्यान में रख के आई वाज मेकिंग। तो वो 2-3 पीस ऑफ कंटेंट स्टार्टेड वर्किंग, कुछ थे बैंक से रिलेटेड, कुछ आईसीआई के रूल से रिलेटेड, ऐसे करके। तो वो 2-3 पीस ऑफ कंटेंट समवर, और कुछ हैक्स जो थे वैसे करके। एंड देन वो एक साथ, एक बार जब एक पीस ऑफ कंटेंट अच्छा परफॉर्म करने लगा, फिर व्हेन आई क्रिएटेड मोर वैसा कंटेंट, तो वो सारे एक साथ थोड़ा पेस कर लिया। दैट हेल्प मी टू लाइक ग्रो इन दिस स्पेस। So the category that you're creating content in, no, BFSI, it's very, वैसे जनरली उसको कंसिडर किया जाएगा बोरिंग, बट आजकल मैं देखती हूँ ब्रांड्स लाइक Echo and all, they're coming up with some really fun content. I mean, they're doing podcasts, they're coming up with fun ads. As a content creator, how do you bring in the entertainment element in your content? हाँ, सी इंस्टाग्राम पे ना लोग जनरली आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो इफ वी जस्ट प्रोवाइड नॉलेजेबल कंटेंट ना, तो चांसेस आर, बहुत कम चांसेस है कि लोग उसको देखेंगे। दे माइट स्क्रॉल जब तक उसमें कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, वन, आई ट्राई टू प्ले रोल्स, तो उसके वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कॉन्वर्सेशनल रखती हूँ मैं अपना रील्स को। तो उसके वजह से, बिकॉज आई ट्राइड स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज ट्राइंग अलग अलग कंटेंट, आई ट्राइड क्रिएटिंग जस्ट plain piece of content, just coming in front of the camera and just telling the rules and everything. So that did not work out. तो आई अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, सिर्फ ऐसे कैमरा के सामने आके इट कैन वर्क आउट, अगर आपका, इफ द एडिटिंग इज एंगेजिंग, या फिर आप कुछ और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बता रहे हो, दैट कैन वर्क। बट जनरली अगर आप सिर्फ कैमरा से आके बात कर रहे हो ना, तो वो पीस ऑफ कंटेंट नहीं वर्क करता है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, एक फर्स्ट इज ट्राई मेक कॉन्वर्सेशनल कंटेंट, तो दैट हेल्प्स। उसके बाद आई ट्राई कि रियल लाइफ सिनेरियो से थोड़ा रिलेट करके, मतलब, या फिर लास्ट में कुछ फन ऐड कर देना। पूरा कंटेंट नॉर्मल है एंड लास्ट में कुछ फन ऐड कर देना। तो उससे क्या होता है कि लोग को वो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो ये सारी चीज हेल्प करते हैं कि आप नॉर्मल बोरिंग कंटेंट को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दो। And is your, I mean, जॉब भी कर रहे कंटेंट क्रिएशन, क्या ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है या फिर यू एंजॉय इट? आई एक्चुअली एंजॉय डूइंग इट। कभी कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, कुछ कुछ, व्हेन यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द, अब सबका नजर आपके ऊपर रहता है ना, तो कभी कुछ लाइक कुछ कमेंट्स ऐसा आ जाए, नॉट कमेंट्स एग्जैक्टली, फिर यू मतलब आप पब्लिक में कुछ डाल रहे हो, तो एवरीवन हैज राइट टू गिव देयर कमेंट्स ना। तो कभी कभी वो कमेंट्स को हैंडल करना, एंड देन हैंडल करना कि आप सीईओ हो, फिर आप क्यों कंटेंट क्रिएशन ट्राई करो, जब बहुत सारे लोग ये बोलने लग जाते हैं, वो सब हैंडल करना थोड़ा कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल इट। एंड बाकी क्रिएटिंग कंटेंट एंड ये तो इज एक्चुअली वेरी fun for me. It's I like doing this. So my next question is, I mean, SEBI now wants to regulate influencers in your space. So how do you foresee this impacting your work? I mean, do you take it in a positive light, या आपको लगता है कि आपके content creation में freedom में hurt कर रहा है? See, I believe na, when we talk about creating content related to finance, there are a lot of type of content actually. कुछ content कोई content होता है that they just give knowledge to the people. They don't talk about stocks and everything. बस in general like you should invest. आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो नहीं बता रहे वो, ठीक है, ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, आपको अपना पैसे ऐसे मैनेज करना चाहिए। वन इज दैट टाइप ऑफ कंटेंट। कुछ होते हैं जो आपको स्टॉक के बारे में न्यूज देते हैं कि मार्केट में ये हुआ, इसके वजह से स्टॉक प्राइसेस पे ये ऊपर नीचे ऐसे करके कुछ हुआ, या कुछ होने वाला है, मतलब मार्केट में कुछ होने वाला है, वैसे करके बताते हैं। एंड देन देयर आर सम क्रिएटर, सम एक टाइप ऑफ कंटेंट होता है जिसमें दे एक्चुअली टेल यू कि बिकॉज ऑफ दिस द स्टॉक प्राइसेस माइट गो अप। दे गिव देयर ओन एनालिसिस ऑन द स्टॉक, एंड उसके बेसिस में सम दे आर ओनली दे आर पुटिंग आउट द कंटेंट टू एडुकेट द पीपल, लेकिन काफी सारे लोग उसको एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेते हैं। तो आई थिंक अगर सेबी कंट्रोल भी, सेबी वांट्स टू पुट अ रेगुलेशन या फिर, तो आई थिंक वो सारे क्रिएटर्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो उन क्रिएटर्स को इम्पैक्ट करेगा जो एक्चुअली जो एनालाइज करके बता रहे हैं स्टॉक्स के बारे में। एंड आई डोंट थिंक उनके साइड से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना चाहिए उनको, बिकॉज एनीवेज दे आर एनालाइजिंग, दे हैव उतना नॉलेज कि वो अच्छे से एनालाइज कर पाए कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा होगा ये।
तो अभी जैसे सीवी वाज टेलिंग कि कुछ एग्जामिनेशन या ऐसा कुछ लेके आएंगे कि हम एक क्रिएटर्स को रेगुलेट कर पाए। तो आई थिंक उनके लिए वो एग्जाम देना या फिर वो रेगुलेशन को के साथ एडर करना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं Do you in your brand-led content, do you put those hashtags called branded content, ads, collaborations? है। यस यस, वी डू पुट ad collaboration at the end hashtag में, and also we add that paid partnership label ना। So uh, sometimes brands ask content creators not to use it. तो आप क्या करते हैं ऐसे सिनेरियो में? see, to be honest, I have not faced such situation अभी तक। मतलब all the content which I have posted जो branded content है उसमें अभी तक I've always used that branded। लेकिन I don't think, मतलब I have not come across, एक बार I even if वैसा हो रहा है तो we need to see कि क्या content है, मतलब do they really provide the value to the people, एकदम मतलब genuine है या नहीं, फिर we can see कि कैसे हमें work करना है। But I think it's always better to use a collaboration या फिर ad वाला hashtag so that people know कि this is a branded post। So what do you consider the true barometer of success in your content creation journey? um see, likes and comment तो एक पार्ट हो गया, बट आई ऑल्सो थिंक कि दे इम्पैक्ट, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग कंटेंट रिलेटेड टू फाइनेंस, जो तो हम क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं लोगों के पर्सनल लाइफ में, दैट ऑल्सो मैटर्स। इफ देर आर पीपल कम अप एंड टेल मी दैट आई स्टार्टेड investing after seeing your videos, I started an SIP after seeing your videos, if you are able to bring a positive impact on people's life, जो हमें अपना कमेंट सेक्शन से या कभी हम लोगों से मिलता है तो हमें पता चल जाता है। तो आई थिंक अगर वो चीज हो रहा है तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक वी कैन मेजर इट दैट वे। So आपके फॉलोअर्स मेनली जेनजीज एंड मिलेनियल्स हैं या फिर उसके ऊपर के एज ग्रुप के लोग भी हैं? इट्स लाइक द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 45, 50 के बीच में है वो। And when it comes to male and female ratio, इट्स 60-40, so 60 is 60% मेल एंड 40% फीमेल। Hmm. I generally see that female influencers have got more male following, of course. बट इफ यू कंपेयर, आई थिंक इफ यू कंपेयर इट विथ अदर्स, ऐसे देयर आर पीपल हु से कि आप एक लड़की हो तो आपके पास मेल आपको ज्यादा फॉलो करते हैं इसलिए यू गॉट, इफ यू आर एट दिस नंबर। बट आप इन जनरल अगर ऐसे आप कंपेयर करोगे ना तो 60-40 इज अ वेरी गुड रेशियो। So are you planning to expand the genre of content you create? राइट नाउ तो आई क्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू समथिंग अराउंड फाइनेंस या लॉ वैसे करके। इवन अभी जस्ट तो प्लान नहीं है, बट इवन इफ आई एक्सपैंड द जॉनर तो दैट विल बी मोर, दैट विल, जो भी कंटेंट होगा वो आई थिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड ही होने वाला है। ऐसा कंप्लीट शिफ्ट नहीं दिखेगा, बट अगर कोई चीज फाइनेंस से वी कैन रिलेट तो वहाँ लाइफस्टाइल को भी अगर फाइनेंस से हम रिलेट कर सकते हैं तो वहां साइड थोड़ा आई कैन एक्सपैंड इन द फ्यूचर। बट करेंटली अभी जस्ट वैसा प्लान नहीं है। ओके, आपको अपनी पहली ब्रांड डील कब मिली थी? I told you ना, मतलब first brand deal which I got was actually before I started creating content on Instagram. हाँ, वो That एडटेक too. था। They actually paid me around 3 to 4 thousand for one video, And how did you get it? I mean, because that time you were not into this content creation. because I was actually active on LinkedIn ना, तो CA students वाला content तो वो CA से related ही था, तो वहां पे। And the next branded जो कंटेंट था वो भी आई आफ्टर आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम ना, तो उसके बाद भी आई हैड दिस कि 100-200 के क्रॉस हो उसके बाद ही आई गो इनटू ब्रांडेड कंटेंट, उससे पहले नहीं। तो उसके बाद भी द फर्स्ट ब्रांडेड कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट व्हिच आई मेड वाज विद अ एडटेक कंपनी ओनली। सो So दैट वाज that अराउंड was, व्हेन आई वाज, sorry, I cut you. आप बोलो ना। नहीं नहीं, आई वाज टेलिंग कि वो भी अराउंड, दैट वाज अराउंड व्हेन 200-300 के फॉलोअर्स थे, उसके अराउंड आई डिड माय फर्स्ट तो ब्रांडेड आप कंटेंट। कौन से टाइप के ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर चुके हो अभी तक में? अभी आई हैव कोलैबोरेटेड विद एडटेक, द अदर वन इज बैंक्स के साथ। बैंक्स के अलावा कुछ, अगर मोस्टली बैंक्स है, फिर उसके अलावा कुछ और अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ कंपनीज हो या फिर तो वैसे कंपनीज के साथ, मोस्टली फाइनेंस वैसे ब्रांड्स के अभी तक। नॉट बियॉन्ड BFSI? हाँ नहीं, नॉट बियॉन्ड BFSI। बट आप लेना चाहोगे ऐसे ब्रांड डील्स गोइंग बियॉन्ड BFSI?
I am thinking abhi to. I have actually done one or two piece of content which is beyond BFSI, which was actually product based. तो एक या दो मैंने किया है. I forgot it abhi, but I'll definitely I want to try other piece of content because I think उनको भी equally we can provide value. Moving ahead with this conversation, where do you envision taking your content creation journey in the next 2 years? I'm actually still figuring out where exactly it will go. I obviously want to expand on this. यहाँ तो जितना ज्यादा expand कर पाए. Other than that, कुछ अगर business या कुछ something I can create around content creation. So I will try. I'm trying to work on that. So I think कुछ time के बाद I'll be in a very better position to answer this question अभी. हम्म। और आप अभी भी लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करते हो उतना ही जितना इंस्टाग्राम पे करते हो? अभी वापस से आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन. बीच में व्हेन आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम तो थोड़ा सा लिंक्डइन बैक सीट ले लिया था, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि ठीक है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबको एक साथ कैसे मैनेज करते हैं. Is there something interesting जो मुझे बताना चाहोगे and I haven't asked you? Something that would be good for brands to listen to, something that would be good for creators to listen to you? Yeah, I think we have covered most of the things, but I think creators के point of view से I but we have covered. मतलब एक चीज जो people generally ask me that how did I, it took me around 3 months, 3.5 months to reach a million. तो स्टार्टिंग में आई वाज नॉट गेटिंग व्यूज, तो वहां पे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार व्यूज नहीं आ रहे, शुड वी स्टॉप कंटेंट क्रिएशन, नहीं करना चाहिए क्या ट्राई. तो इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. आई हैड अनदर पेज स्टार्टिंग में वेर आई क्रिएटेड कंटेंट, बट वहां पे कुछ व्यूज नहीं आ रहा था. तो मतलब वहां आई डिड नॉट पोस्ट अ लॉट. 12 13 पीस ऑफ कंटेंट ही पोस्ट किया था. फिर आई स्टार्टेड अ न्यू पेज. यहाँ पे भी 30 पीस ऑफ कंटेंट पे कुछ व्यूज नहीं आ रहे वैसे नहीं. फिर अचानक से a few, कुछ कंटेंट वर्क किया एंड देन सारे कंटेंट वर्क करने लगा, एंड देन इट took me just 2 months from 10K, 2.5 months to from 10K to 1 million. तो आई वाज जस्ट से कि आप अगर स्टार्ट. सॉरी, आप बोलो ना. नहीं, हाँ भाई, आई वाज टेलिंग कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग व्यूज, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. वो क्योंकि मेरे साथ यूट्यूब पे भी ऐसे ही हुआ. ऑल्दो द इंस्टाग्राम वाज गेटिंग रीच, यूट्यूब वर्क नहीं कर रहा था. तो यूट्यूब पे भी इट वाज लाइक स्टार्टिंग का 4 5 मंथ्स इट डिड नॉट वर्क आउट. फिर आई थॉट कि छोड़ देता है, अब हो गया, अब यूट्यूब तो नहीं कर रहे हैं. मतलब आई डिड नॉट पोस्ट बहुत सेपरेट कंटेंट, शॉर्ट्स ही अपलोड कर दी. बट देन यूट्यूब भी वैसे ही वर्कआउट किया क्योंकि आई पोस्टेड कंसिस्टेंटली एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड देन इट जस्ट वेंट फ्रॉम 6,000 to 13 14,000 to around 100K in just 3 to 4 days. तो मतलब इट्स नॉट कि आप 4 डे में वहां रीच की हो, इट्स आपने वो 6 7 4 5 महीने जो कंटेंट बनाए फिर वो वर्क किया. तो जस्ट डोंट स्टॉप इट बिकॉज इफ नॉट, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स व्हिच यू वांट. एक बार आप अच्छे से टाइम दो उसको, एंड देन आई थिंक वो इवेंचुअली आप वो अचीव कर लोगे. 1% भी इसमें लक का रोल है या फिर इट्स ऑल एल्गोरिथम्स? आई थिंक इट्स a mixture of everything, your hard work, your luck, and also algorithm. मतलब आप अगर सिर्फ लक के बेसिस पे करोगे तो ऐसा, तो फिर आप कंटेंट बनाओ ही नहीं. आप एक पीस ऑफ कंटेंट बनाओ एंड यू विल रीच देयर, वैसा होगा नहीं. यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंटेंट. अभी भी बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो आई थिंक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं बिकॉज आई हैव सीन देम क्रिएटिंग कंटेंट, बट उनका आई डोंट, पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम आता है, वो एल्गोरिदम साथ सपोर्ट नहीं करते या कुछ. तो उनके साथ भी बट आई हैव सीन कि वो हो सकता है 1 महीना नहीं वर्क किया, 2 महीना नहीं वर्क किया, बट दे डिड नॉट स्टॉप पोस्टिंग. तो वो थर्ड मंथ देयर कंटेंट वेंट वायरल, एंड उसके बाद सारे पीस ऑफ कंटेंट अच्छे परफॉर्म करने लग गए. तो एल्गोरिदम भी वर्क करता है. हो सकता है वो आपके साथ थोड़ा टाइम बाद वो समझ में आए, वो ढंग से आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करे. बट आई थिंक तो ऐसे इट्स मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम. एक चीज को आप वो नहीं कर सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच साक्षी, बहुत मजा आया आपसे बात करके. होप यू क्रिएट मोर एंड मोर एंटरटेनिंग कंटेंट इन योर बीट एंड एक्सपैंड भी करो, बिजनेस भी शुरू करो. ऑल द बेस्ट टू यू साक्षी. Thank you so much. It was lovely talking to you. It was great being part of this. Actually, मतलब I enjoyed a lot. I don't know about you. How much did you enjoy? Fun. I actually enjoyed talking to you a lot. It was fun. Do follow us. Yes, definitely. And all the other people watching, do follow her. And me too. Okay, bye bye. Have a good day.
Bye bye. Thank you.